Hello students, today we are discuss depression of freezing point, a topic of chapter solution. So freezing point of a substance is the temperature at which its solid and liquid phases have same vapor pressure. So when solid phase and liquid phase have same vapor pressure, at that temperature is called freezing point. So freezing point of a substance is the temperature at which liquid and solid phases have same vapor pressure. So for example, this is the vapor pressure versus temperature graph. So this is a solution in liquid state and this is a solution in solid state. When liquid and solid states coexist with each other, when liquid and solid states of a solution coexist at each other, then that temperature is called, this corresponding temperature is called freezing point, is called freezing point of that solution. So freezing point is that temperature at which, this is the liquid phase, as the temperature decreases, liquid phase converted into solid phase. So when liquid starts convert to solid at that temperature, at that point, that temperature is called freezing point, represented by TF. That temperature is called freezing point. So whenever a solution in liquid state and solution in solid state, same solution, have same vapor pressure, when solid state of solution and liquid state of solution have same vapor pressure, that corresponding temperature is called freezing point of solution. So the freezing point of a liquid is the temperature at which vapor pressure curves for solid and liquid states intersect each other. जहाँ पे liquid state of a solution and solid state of a solution क्या कर रही हैं स्टूडेंट, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोएग्जिस्ट कर रही हैं, that टेम्परेचर जहां पे ये सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट दोनों को एग्जिस्ट हुए, फॉर एग्जांपल आपका वाटर, लिक्विड स्टेट आइस बनना शुरू होगा इन सॉलिड स्टेट. सो एट दैट टेम्परेचर वेन एवर वाटर इन लिक्विड स्टेट just starts converting to solid state, this is a water in liquid state and this is a ice in solid state. So at that temperature, when water just starts convert to ice, means liquid state just convert to solid state, that temperature is called freezing point. That temperature is called freezing point. So next is depression of freezing point. So student, whenever a non-volatile impurities are added to the solvent, the vapor pressure of the solvent decreases. ये हम पढ़ चुके हैं, vapor pressure क्या करता है, डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट राइज करता है. तो लाइकवाइज स्टूडेंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिप्रेस करेगा. फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिप्रेस करेगा. ये हम पढ़ चुके हैं. वेपर प्रेशर कर्व्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशंस ऑफ टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस एंड ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट. क्या करते हैं स्टूडेंट, ये आपकी एक लिक्विड स्टेट है किसी सोल्यूशन की और ये वाली कौन सी है, सॉलिड स्टेट है, ये कोएग्जिस्ट कर रही हैं. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट. क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट. दिस वन इज प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज इन लिक्विड स्टेट एंड दिस इज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट. दिस कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर is called freezing point of the solvent. So now whenever non-volatile solute is added to the solvent, तो स्टूडेंट क्या बना, सोल्यूशन बना. फॉर एग्जांपल सोल्यूशन 1 बन गया. सो सोल्यूशन, जैसे सोल्यूशन बना स्टूडेंट, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड करने के बाद तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया स्टूडेंट, कम हो गया. तो यहां से यहां, दिस इज अ वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर कर्व. सो दिस इज द प्योर सॉल्वेंट एंड जैसे ही हमने सॉल्वेंट में क्या ऐड किया स्टूडेंट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट इंप्योरिटीज ऐड की, तो ये स्टूडेंट देखिए वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया. तो ये कर्व आपकी क्या आ गई, डाउनवर्ड आ गई. कर्व क्या आ गई, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड कर्व मीन जैसे ये सोल्यूशन बना
तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया स्टूडेंट, कम हो गया। ये वेपर प्रेशर पहले पी नॉट था, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये पी नॉट से क्या हो गया स्टूडेंट, P1, पी नॉट से क्या हो गया P1। सो व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स आर एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस। तो ये सोल्यूशन 1 है स्टूडेंट, सोल्यूशन 1 का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया है। नाउ दिस इज द सोल्यूशन इन सॉलिड स्टेट। नाउ हम क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। तो सोल्यूशन 1 इन सॉलिड स्टेट, यहाँ पे क्या आ गया, ये सॉरी दिस इज द सोल्यूशन 1 इन लिक्विड स्टेट, दिस इज द सोल्यूशन 1 ऑफ लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पे वो फ्रीज होता स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सी स्टेट पे आ गया आप, सॉलिड स्टेट पे। ये सॉलिड स्टेट कर्व आ गई आपकी उसी सोल्यूशन की। ये कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या आ गया स्टूडेंट, टेम्परेचर T1 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और ये टेम्परेचर स्टूडेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो दिस इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सोल्यूशन 1। अगेन फिर से देख लीजिए, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द लिक्विड स्टेट and this is the pure solvent of solid state. These two states coexist, intersect at point A. corresponding temperature जो है वो क्या है, freezing point of किसका स्टूडेंट, सॉल्वेंट का। और ये P नॉट आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर है, जहाँ पे ये आपका प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो गया था, वो कौन सा वेपर प्रेशर है, P नॉट, प्योर सॉल्वेंट का एट पॉइंट ए। नाउ जैसे ही हमने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज ऐड की स्टूडेंट, वेपर प्रेशर क्या हो गया, ये देखिए वेपर प्रेशर कम हो गया है। पी नोट से क्या हो गया स्टूडेंट, P1 डिक्रीज कर गया है। अब दिस जो सॉल्वेंट 1 था वो क्या बन गया स्टूडेंट, सोल्यूशन 1 बन गया है। सोल्यूशन 1, ये सोल्यूशन 1 की कौन सी स्टेट है स्टूडेंट, दिस इज द लिक्विड स्टेट। अब हम उसको फ्रीज कर रहे हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे ये वाला स्टूडेंट जो लिक्विड स्टेट अब क्या किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, ये वाली सॉलिड स्टेट BC कर्व है जो, और ये वाला जो टेम्परेचर है कॉरस्पॉन्डिंग, ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दिस इज द TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, T1 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जब हमने नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड कर दी थी। और ये वेपर प्रेशर क्या हो गया स्टूडेंट, कम हो गया। और ये टेम्परेचर ये आपका भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। दिस डेल्टा TF इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं, व्हेन नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर एडेड टू द सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। पहले P नॉट था सॉल्वेंट का, P नॉट से क्या हो गया, P1 हो गया। द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। अब जितना स्टूडेंट हम ज्यादा सोल्यूट ऐड करते जाएंगे, जितना सोल्यूट हम सॉल्वेंट में ज़्यादा ऐड करते जाएंगे, उतना वेपर प्रेशर स्टूडेंट क्या होगा, उतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। जितना वेपर प्रेशर स्टूडेंट कम होता जाएगा, उतना फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा स्टूडेंट, कम होता जाएगा। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सो यहाँ पे स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आपका प्योर सॉल्वेंट था, हमने सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूशन 1 बन गया। सो एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, ये सोल्यूशन 2 बन गया। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे स्टूडेंट, वेपर प्रेशर क्या हो गया, पहले P नॉट से P1 था, कम हो गया। जैसे हमने और इंप्योरिटीज ऐड की, P1 से क्या आ गया स्टूडेंट, P2 वेपर प्रेशर आ गया और कम हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपकी लिक्विड स्टेट है सोल्यूशन 2 की, और ये आपकी सॉलिड स्टेट है सोल्यूशन 2 की। यहाँ पे दोनों C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए, ये कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या आ गया, T2। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका आ गया, सोल्यूशन 2 का। सो एज द impurities are added, more and more vapor pressure decreases, more and more freezing point depress। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट फिर से क्या हो गया, और डिप्रेस हो गया, क्या हो गया, और डिप्रेस हो गया। सो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट इंक्रीजेज, freezing point of solution decreases। So these points ये हम आप डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। So as the concentration of solute, non-volatile solute added to the pure solvent increases, vapor pressure decreases. If vapor pressure decreases, then freezing point also decreases because boiling point increases and freezing point decreases। ठीक है स्टूडेंट, ये कर्व आपकी डिस्कस हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ गया आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मैथमेटिकल रिलेशन। इसको हमने डेल्टा TF के साथ रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट, और ये डेल्टा TF क्या है आपका,
freezing point of pure solvent minus freezing point of solution. T naught is the freezing point of solvent and T is the freezing point of solution and delta TF is the depression of freezing point. So solvent का freezing point स्टूडेंट क्या था, ज़्यादा था, तो solvent freezing point minus solution का freezing point क्या आ गया स्टूडेंट, depression of freezing point. So this delta TF is directly proportional to molality of the solute in solution, कि आपने कितना सल्यूट ऐड किया, जितना आप सल्यूट ज़्यादा ऐड करते जाओगे सॉल्वेंट में उतनी मोलैलिटी बढ़ती जाएगी सल्यूट की, और जितनी मोलैलिटी बढ़ती जाएगी स्टूडेंट उतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, जितना वेपर प्रेशर कम होगा स्टूडेंट उतना फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा. सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सल्यूट इन द solution and delta TF is equal to KF into M. KF is a proportionality constant and is called molar depression constant or molar freezing point of depression. And KF has units. स्टूडेंट इसके यूनिट्स क्या होंगे, डेल्टा TF के यूनिट्स क्या हैं, केल्विन. KF के स्टूडेंट निकालने हैं और मोलैलिटी के क्या होते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो ये किलोग्राम उधर चला गया, केल्विन किलोग्राम उधर चला गया और मोल्स इधर आ गए स्टूडेंट, ये -1 हो गए. सो क्या आ गया यूनिट्स, केल्विन किलोग्राम पर मोल और डिग्री किलोग्राम पर मोल, बिकॉज मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर यूनिट kg of solvent. So if m is equal to 1, if molality of solution is 1, then delta TF is equal to KF or KF is equal to delta F. So definition क्या है स्टूडेंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की KF इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो KF किसके बराबर आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन कितना हमने सल्यूट ऐड किया, व्हेन 1 मोल ऑफ सल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. बिकॉज मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है स्टूडेंट, 1 मोल, और सॉल्वेंट कितना लिया हुआ है स्टूडेंट, 1 kg. सो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सो मोलैलिटी कितनी आ गई स्टूडेंट, 1 मोलल. मोलैलिटी कितनी आ गई, 1 मोलल. सो अगर मोलैलिटी 1 मोलल है तो जो आपका KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वो किसके बराबर आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के. एंड ये MCQs में स्टूडेंट आ जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ KF. ये KF का जो मैग्नीट्यूड है किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, कि जो आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है वो कौन सा है, वाटर है, अल्कोहल है, कौन सा है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ KF डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, नॉट सल्यूट, not solution, nature of solvent only. So next article is determination of molar mass of solute from delta TF. अब स्टूडेंट हम क्या निकालना हमने, मोलर मास ऑफ सल्यूट. अब स्टूडेंट ये आपका डेल्टा TF था, KF इंटू M, और M क्या था स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. अब स्टूडेंट KF डेल्टा TF इज इक्वल टू KF. स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, मास गिवन मास ओवर मोलर मास, मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सल्यूट. एंड स्टूडेंट ये तो था ही मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ये आपका डेल्टा TF. अब स्टूडेंट में निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सल्यूट. ये उधर चला जाएगा स्टूडेंट और डेल्टा TF आपका नीचे आ जाएगा. सो मोलर मास ऑफ सल्यूट क्या आ गया स्टूडेंट, KF इंटू मास ऑफ सल्यूट, और ये डेल्टा TF स्टूडेंट नीचे आ गया है, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम है. अगर आपने ग्राम में लेना है या ग्राम में आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा तो ऊपर 1000 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. स्टूडेंट KF मैंने क्या कहा था अभी, कांस्टेंट है फॉर ए गिवन सॉल्वेंट, ये कांस्टेंट है. अगर हमें पता है कि हमने सल्यूट कितना लिया, हमने कितना सल्यूट ऐड किया है किसी सॉल्वेंट में, मतलब मास ऑफ सल्यूट भी हमें पता है क्योंकि जो हमने ऐड किया वो तो हमें पता ही है,
और डेल्टा टी एफ हम थर्मामीटर से या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे बिफोर एडिशन और आफ्टर एडिशन ऑफ सोल्यूट। डेल्टा टी एफ निकल जाएगा वहाँ से, बिकॉज डेल्टा टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी हमने कितना लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर लिया है तो वाटर की अमाउंट कितनी ली है, 1 किलो ली है, 3 किलो ली है, 10 किलो ली है, वो भी हमें पता है। तो दिस वन इज आल्सो गिवन, डेल्टा टी एफ इज आल्सो गिवन, मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें पता है। तो स्टूडेंट के एफ कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमें के एफ, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टी एफ हमें गिवन होंगे और वो हमें पता भी होते हैं, क्योंकि के एफ तो कांस्टेंट है, मास ऑफ सोल्यूट हमें पता है कि हमने सोल्यूट कितना लिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें पता है हमने कितना सॉल्वेंट लिया है, और डेल्टा टी एफ हम मेजर कर लेंगे स्टूडेंट, तो हम क्या हमारे पास आ जाएगा, मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। हमें सोल्यूट का पता चल जाएगा कि हमने कौन सा सोल्यूट ऐड किया है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस वन इज अ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। Kf is the number of moles of solute over mass of solvent in kilogram. N2 is the number of moles of solute. W1 is the mass of solvent in kilogram. So N2 number of moles of solute. Number of moles of solute, mass of solute W2 over molar mass of solute M2. So number of moles of solute की यहाँ वैल्यू पुट कर दी. W2 is the weight or mass of solute and M2 is the मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और ये आपका KF। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना था M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये उधर चला जाएगा स्टूडेंट, और डेल्टा TF कहाँ आ जाएगा, नीचे ये डेरिवेशन में आपको अभी प्रूव करके बता चुका हूँ। ये M2 इज इक्वल टू क्या आ गया, KF W2 W1 एंड डेल्टा TF। और अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स में दिया हुआ है तो स्टूडेंट ऊपर 1000 के साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है स्टूडेंट, now if we know everything, Kf is constant, this is the mass of solute that is given, delta 1 mass of solvent is given, delta Tf हमने मेजर कर लेना है, और हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। सो ये हमारा आर्टिकल ओवर हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट फ्रॉम डेल्टा Tf। So next, practical application of depression of freezing point. So use of anti-freeze in radiators of cars in cold countries. Student, cold countries में जो कार्स के रेडिएटर्स होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी फ्रीज सोल्यूशंस। क्या यूज़ करते हैं, एंटी फ्रीज सोल्यूशंस। सो यूज़ ऑफ एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर्स ऑफ कार इन कोल्ड कंट्रीज, बिकॉज इन कोल्ड कंट्रीज द रेडिएटर्स इज जैम्ड। सो इफ वी यूज एंटी फ्रीज देन वी कैन प्रोटेक्ट radiators of our cars. So use of radiators in use of antifreeze in radiators of cars in cold countries is based on the depression of freezing point. ये किसकी application है student, freezing point, depression of freezing point की। ethylene glycol. Ethylene glycol is an antifreeze agent. Ethylene glycol is a typical antifreeze example. So when ethylene glycol is added to water, the freezing point of water gets lowered. For example, student, 335 gram of ethylene glycol added to 1 kilogram of water. Then freezing point of water, pure solvent, decreases by 10 degrees centigrade. That is, such a solution of ethylene glycol freeze only at -10 degree centigrade. Student, water जो freeze हो रहा था 0 डिग्री पे, अब वो freeze कब होगा, -10 डिग्री पे। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज कर गया। इसका मतलब हमारे कार के जो रेडिएटर्स हैं वो क्या अब जैम नहीं होंगे, बिकॉज जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, -10 डिग्री पे पहुंच गया। जहां 0 डिग्री था वहां स्टूडेंट कितना हो गया, -10 डिग्री, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 से क्या हो गया, -10। क्या ऐड करने के बाद, एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज कौन सा स्टूडेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपके एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है। सो नेक्स्ट ऑस्मोसिस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।